whenever you dip a capillary inside a liquid, inside the capillary, the liquid may rise or fall. ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिलरिटी. ठीक है, कैपिलरिटी हमने लास्ट टाइम समझाया था. सभी देखो ध्यान से. टुडे वी विल सी, हम लोग यहाँ पे दो टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट थिंग कि कैपिलरी के अंदर लिक्विड राइज क्यों होता है, व्हाई लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी, एंड देन आफ्टर दैट वी विल डू द डेरिवेशन in which we will find out the height of the liquid raised. लिक्विड इसमें राइज होता है, कितने हाइट तक राइज होता है, वो हाइट का फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे. ठीक है, सो टुडे विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक. ओके, आज कैपिलरी फिनिश करना है. नाउ सी डू इट. इमेजिन दैट, ये मैंने कल थोड़ा स्टार्ट किया था. सपोज दिस ट्यूब इज अ कैपिलरी. नाउ एक्चुअली कैपिलरी इज वेरी थिन, बट सिर्फ डायग्राम में क्लियरिटी के लिए आई हैव ड्रॉन इट वेरी बिग. इतना बिग कैपिलरी नहीं होता है, इट इज एक्चुअली वेरी थिन. Okay, the capillary is very thin. अब देखो यहाँ पे इसके आसपास if you see surrounding में liquid है, there is a liquid around it. ये सब liquid है. आपको याद होगा when I discuss angle of contact, during angle of contact मैंने बताया था कि liquid corners पे bend होती है. So here you can see the liquid has bent at the corners. So if you look at outside the capillary, here liquid is plane, liquid का surface plane है. Only at the corners it is bending. But inside the capillary, if I see inside the capillary, तो capillary बहुत thin होने की वजह से क्या होता है, here the entire surface is curved. आपको capillary के अंदर plane surface नहीं मिलेगा, it is completely curved. So this curved surface that you can see, it's inside the capillary. This is named as PQ. This curved surface is sometimes called as meniscus. Meniscus is a word for this curved surface PQ. ठीक है, ठीक है. So this surface is called as meniscus. Okay, अब देखो होता क्या है. सबसे पहले we will discuss that why this one liquid rises inside the capillary. ठीक है, अब इसको समझने के लिए ना आपको यहाँ पे 4 points consider करनी है. Consider 4 points. Look at these points which I am drawing. This is point A, point B, here is point C, and here is point D. ये ध्यान से पॉइंट्स A, B, C, D ध्यान से देखो. मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ. Look at the point A. Point A is just above the surface. Point B is just below the surface. Okay. Between points A and B there is a plane surface. Okay. Here points C and D are inside the capillary, but point D is in air. Point D is just outside the meniscus. And point C is just inside the meniscus. ठीक है, तो ये जो point A, B, C, D है सबके सब surface के near ही है, they are not away. ठीक है, अब देखो आपको याद होगा जब last time हमने वो discuss किया था excess pressure, उस टाइम मैंने बताया था कि जब भी कोई plane surface involved होती है, plane surface, तो plane surface के दोनों side pressure same होता है. Here since between A and B there is a plane surface, so I can say pressure at point A must be equal to pressure at point B. A और B point पे pressure same होगा. Okay. Now, if you look at point A and D, A और D को देखो, A के ऊपर भी atmospheric pressure होगा. A के ऊपर क्या है? Atmosphere है ना. So A के ऊपर there will be atmospheric pressure, and D के ऊपर क्या है? D के ऊपर भी open capillary है. So above D also atmospheric pressure is there, and above A also there is atmospheric pressure. That's why I can say pressure at A and D must be equal. A और D पे pressure equal होगा. ये देखो, तो pressure at A and B is equal. Pressure at A and D is also equal. ठीक है, ये थोड़ा समझ के लो. ठीक है, अब बाकी हम लोग C point बच गया. C point को देख लेते हैं. Now, if you look at the meniscus, meniscus is a curved side. मैंने last time बताया था during excess pressure that pressure is always more on the concave side of curved surface as compared to convex side. प्रेशर हमेशा कॉन्केव साइड पे ज्यादा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू लुक एट इट PQ, PQ को आप देखो, PQ ऊपर के साइड से देखेंगे ना, व्हेन यू लुक एट द PQ फ्रॉम अपर साइड इट इज कॉन्केव. ऊपर के साइड से वो कॉन्केव है. दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस, प्रेशर एट कॉन्केव साइड मींस प्रेशर एट D साइड. प्रेशर एट D पॉइंट मस्ट बी मोर देन प्रेशर एट C.
डी पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर होगा एज कंपेयर टू सी, ठीक है। बट हियर वी प्रूव्ड दैट प्रेशर एट डी पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट बी पॉइंट। तो डी की प्लेस पे मैं बी को लिख सकता हूँ ना, बिकॉज दे आर इक्वल। तो यहाँ पे मैं इन प्लेस ऑफ डी आई एम राइटिंग बी। तो देखो मुझे एक रिजल्ट आ रही है that pressure at B point is greater than pressure at C point. Pressure at B is greater than pressure at C. Pressure at B is greater. ठीक है, तो pressure at B is more as compared to pressure at C. मतलब pressure at C is less. ठीक है, B पे ज्यादा pressure है और C पे कम है। Got this? ठीक है, अब क्योंकि देखो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि that inside the capillary there is a less pressure and outside the capillary there is more pressure. ध्यान से देखोगे ना तो B और C पॉइंट सेम हाइट पे हैं। B एंड C पॉइंट आर एट द सेम हाइट ऑलमोस्ट। देन टू देयर इज अ मोर प्रेशर एट B एंड लेस प्रेशर एट C। तो इस वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी व्हाट हैपेंस, द लिक्विड स्टार्ट फ्लोइंग इनसाइड द कैपिलरी। लिक्विड स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड द कैपिलरी, और लिक्विड कैपिलरी के अंदर तब तक जाता रहेगा जब तक प्रेशर एट C एंड B बिकम इक्वल। जब प्रेशर एट B and C will become equal, तब तक लिक्विड will keep on moving inside the capillary. ये चीजें याद रखो, लिक्विड always tries to move from higher pressure to lower pressure. लिक्विड B से C की तरफ मूव करेगी, ठीक है। That's why what happens, you know, that's why the liquid rises inside this capillary. उसी वजह से लिक्विड rises inside the capillary, ठीक है। So I can say difference in the pressure is a reason for rise of the liquid in the capillary, ठीक है। There is a difference in pressure. Pressure at B point is different than C. Pressure difference is the main reason for rise of the liquid inside the capillary, ठीक है। यहाँ तक समझा? I hope clear है, ठीक है। इस चीज को याद रखो, pressure is always more on the concave side compared to convex side, ठीक है। Here pressure is more from D side compared to C side, ठीक है। So this point I hope it is clear, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now look here. Now we want to derive the formula for height. एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर ये दोनों पॉइंट B और C सेम हाइट पे ना, तो प्रेशर सेम क्यों नहीं है? देखो आई एग्री दैट B and C are at same height, बट B के ऊपर देखो प्लेन सरफेस है, C के ऊपर कर्वी सरफेस है। तो कर्वी सरफेस की वजह से प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है। ये देखो आप एक्सेस प्रेशर याद करो, हमने जो चीज एक्सेस प्रेशर में डिस्कस की थी, डिराइव की थी, वो मैं फिर से तो यहाँ पे डिराइव नहीं करूंगा। हमने एक्सेस प्रेशर में क्लियरली डिराइव किया था कि जब कर्वी सरफेस होती है ना, तो प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ द कर्वी सरफेस इज मोर देन कॉन्वेक्स साइड। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग है ना, जब आप कैपिलरी नहीं डालते हो, व्हेन यू आर नॉट पुटिंग कैपिलरी, everywhere you will get a plane surface, but because of capillary what is happening, above B point there is a plane surface and above C point there is a curvy surface. So फर्क है ना, C के ऊपर अलग सिचुएशन है, B के ऊपर अलग सिचुएशन है, तो उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन देखो A और D पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट होगा। देयर इज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट A, देयर इज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट D। A और D पे प्रेशर सेम है, इट्स बिकॉज ऑन बोथ ऑफ देम देयर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देख लो A के ऊपर क्या है और D के ऊपर क्या है, देयर इज एटमॉस्फेयर अबव A एंड D, सो वही प्रेशर रहेगा, ठीक है। A और B पे भी प्रेशर सेम है, ठीक है, बट प्रेशर इज नॉट सेम एट B एंड C, दैट इज द मेन थिंग। थोड़ा समझो इसको, गेटिंग? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अभी। सी तो ये पूरा नोट डाउन कर लो प्लीज, नोट इट डाउन, ठीक है। आई होप हमने नोट डाउन कर लिया है ऑलरेडी है। हेलो हाँ सी, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है? एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी, इसी वजह से लिक्विड राइज होती है, ठीक है। डायग्राम आपने आई होप कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप कुछ और एडिशन मत करो, दिस मच इज सफिशिएंट एंड राइट दिस मच, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बट यू डोंट डू दिस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सी, because of this pressure difference now liquid will start moving from B to C,
liquid will start moving from B to C. That means from outside the capillary it will go to inside the capillary. तो इससे क्या liquid rise होता है. Liquid will keep on rising and एक particular height पे आने के बाद liquid रुक जाता है. Liquid stops after reaching to particular height. ठीक है. ये meniscus वैसा का वैसा ही रहता है. It still remain curvy, but it stops after reaching to certain height. Let's say that height is h. वो height h है. ठीक है. Today we want to calculate this h also. अब मैं ये start कर रहा हूँ derivation to calculate this h. ठीक है. But h calculate करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ. I told you pressure at B is more than pressure at C. But if I find excess pressure हमने last time किया था, आपको याद होगा. Pi minus Po is given by 2T by R. ये formula याद है? Here Pi is a pressure on the concave side and Po is a pressure on the convex side. So difference in these two pressure was 2T by R. In case of a drop or in case of a single surface, drop को single surface था, तो single surface या drop के लिए this was a formula. आज मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो. Here ये जो curvy surface है, PQ is a curvy surface. Pressure on the D side is more than C. ठीक है. तो मैं लिख सकता हूँ pressure at D minus pressure at C, PD minus PC is 2T by R. PD minus PC is 2T by R. But pressure at D and B is same, na? So PB minus PC is also 2T by R. ये पॉइंट समझ के लो. ठीक है. इसका मतलब है हमने पहले थोड़ी देर पहले प्रूफ किया that pressure at B is more than C. Okay. So pressure at B is more than C by 2T by R. दोनों में जो difference है ना वो 2T by R का है. Here pressure is more than this by 2T by R. दोनों में difference 2T by R का है. Okay. अब इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं that pressure at C is lesser than B by 2T by R. ठीक है. वापस सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ और I suggest वो ये जो मैं बोल रहा हूँ लिख के ले लो statement. Pressure at C is lesser than B by 2T by R. Okay. इसमें R क्या है पता है? R is a radius of curvature of the curved surface. मतलब actually ये जो PQ है, can you see PQ is a curved surface ना? PQ curved surface है. इस curved surface का radius है R. आप ऐसे बोल सकते हो this R is a radius of the meniscus. R is a radius of this meniscus. ठीक है. So मैं एक बार repeat कर रहा हूँ, इस important statement लिख के ले लो. Pressure at C is less than B by 2T by R. दोनों में difference 2T by R का होगा. ठीक है. ये हमने excess pressure में derive किया था that we are using in capillary. अब मैं now I am starting with a derivation. ठीक है. मैं वो derivation start कर रहा हूँ. Derivation के आप heading ये put कर सकते हो. Derivation for, put this heading, derivation for capillary rise. वो मैंने आपको जो h बताया था ना, h is the height up to which liquid rises. This h is known as capillary rise. तो h की फॉर्मूला डेराइव करनी है. ठीक है. Now फॉर्मूला कैसे डेराइव होगी ध्यान से देखो. There are two methods to prove this formula. दो मेथड है जिससे ये फॉर्मूला प्रूव होती है. Method number 1 I am starting. उसके बाद हम लोग method 2 से भी करेंगे. Means there are two ways to derive this formula. Both of these methods are mentioned in the textbook. मैं भी दोनों explain कर देता हूँ. And in the exam you can choose any one method to prove. Okay. So put the heading method 1. Okay. अब देखो पहले diagram draw मत करो, पहले समझ के लो जो मैं बता रहा हूँ. It's a capillary immersed in a liquid. So outside the capillary आप liquid को ऐसा बना लेंगे. Like this. It is outside the capillary. ठीक है. अब मैंने क्या समझा है? Inside the capillary liquid rises because of pressure difference. ठीक है. Liquid rise होता है because of pressure difference. ठीक है. Let's say liquid rises up to h height. ये देखो. Liquid rises up to h height.
ये देखो, ठीक है, दिस वाज सी पॉइंट, दिस वाज बी पॉइंट, याद है? हाँ, सो इफ यू रिमेम्बर प्रेशर एट सी वाज लेस, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे लिक्विड राइज हुआ अप टू एच हाइट, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, नाउ आई कैन से दैट सी पॉइंट पे जो एडिशनल प्रेशर आ गया बिकॉज ऑफ दिस हाइट, देखो अभी सी पॉइंट के ऊपर आप देखोगे तो देयर इज अ कॉलम ऑफ हाइट एच, सी पॉइंट के ऊपर क्या है, देयर इज अ एडिशनल कॉलम ऑफ हाइट एच, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस एच कॉलम, बिकॉज ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कॉलम एच, सी पॉइंट पे जो एडिशनल प्रेशर आया, द एडिशनल प्रेशर विच कम्स एट सी पॉइंट, ठीक है, वो होगा रो जी एच। याद करो मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया था प्रेशर, प्रेशर में क्या बताया था, अगर किसी पॉइंट के ऊपर एच कॉलम है, देयर इज अ कॉलम ऑफ हाइट एच, बिकॉज ऑफ दैट कॉलम यहाँ पे प्रेशर कितना पड़ता है, रो जी एच। सो दिस इज अ प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस एच कॉलम, ठीक है। अब अगर आपको याद है कि पहले बी और सी के बीच में जो डिफरेंस था, डिफरेंस इन द प्रेशर वाज 2T by R, डिफरेंस इन द प्रेशर वाज 2T by R, ठीक है। मतलब प्रेशर एट सी वाज लेस देन बी बाय 2T by R, ठीक है। अब ये एच कॉलम के बाद, आफ्टर दिस एच कॉलम, प्रेशर एट सी एंड बी हैज बिकम इक्वल। जब प्रेशर सी और बी पे इक्वल हो जाएगा तभी ये लिक्विड राइज करना बंद करेगी, देन ओनली लिक्विड विल स्टॉप राइजिंग, ठीक है। लिक्विड स्टॉप हो गया, अभी ऊपर राइज नहीं हो रहा है लिक्विड, सो आई कैन से सी और बी पे प्रेशर इक्वल होगा, ठीक है। सो इससे हम लोग एक चीज समझ सकते हैं, ये जो प्रेशर है ना, इट्स अ इंक्रीज इन प्रेशर एट सी, इट मस्ट बी इक्वल टू 2T by R, इसको थोड़ा समझो, ठीक है। इसको देखो, अब जिन स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करो, सिंपल आइडिया, ठीक है। सी पॉइंट पे प्रेशर कितना कम था कंपेयर टू बी, सर इट वाज 2T by R, 2T by R कम था ना। अब बिकॉज ऑफ दिस एच कॉलम यहाँ पे जो प्रेशर आया, इट इज रो जी एच, सो रो जी एच विल कंपेंसेट दैट डिफरेंस, डिफरेंस कितना था, 2T by R का था ना, तो वो डिफरेंस विल बी कंपेंसेटेड बाय रो जी एच, रो जी एच की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, द प्रेशर इज रो जी एच, दिस रो जी एच मस्ट बी इक्वल टू T by R, then only the pressure at B and C will become equal, ठीक है। सो इस कॉलम की वजह से जो प्रेशर यहाँ पे आया, दैट इज रो जी एच, ठीक है, द रो जी एच विल बी इक्वल टू T by R, ठीक है। तब क्या होगा, प्रेशर एट सी विल बिकम इक्वल टू प्रेशर एट बी, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। इसमें आप H कैलकुलेट करो, द H विल बी 2T by rho RG, 2T by rho RG, ये देखो फॉर्मूला बन गई, इट्स अ फॉर्मूला फॉर H, ठीक है, इट्स अ फॉर्मूला फॉर H। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है चीज, ठीक है, गिव अप मत करो, नहीं समझ में आ रहा है आप पूछो, ओपन अप योर माइक एंड आस्क इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट इन दिस, इस मेथड में कुछ डाउट है तो ओपन योर माइक एंड स्पीक। सर एक बार और एक्सप्लेन करो ना। अच्छा एक काम करो, माइक ओपन ही रखो, नाम क्या है आपका? कार्तिक। कार्तिक सुनो, अभी मुझे आंसर दो प्लीज। सी पॉइंट पे प्रेशर बी से कम है ना? हाँ। कितना कम है? 2T by R। ओके, अब एक बात, अगर मुझे सी और बी पे प्रेशर इक्वल करना है, हाँ। सी और बी पे प्रेशर इक्वल हो जाए, तो मैं सी पे प्रेशर कितना बढ़ाऊं, कितना बढ़ाना चाहिए सी पे प्रेशर ताकि दोनों इक्वल हो जाए? देखो आपका डिफरेंस 2T by R का है, हाँ सी पे प्रेशर शुड बी इंक्रीज बाय 2T by R, हाँ हाँ बराबर है ना? हाँ। सी पे जो प्रेशर है इट इज लेसर देन बी बाय 2T by R, so at C point we should increase the pressure by 2T by R to make them equal। हाँ सर। हाँ, तो C point पे इस H कॉलम की वजह से कितना प्रेशर आएगा? रो जी एच। तो वो अगर रो जी एच जो आ रहा है अगर वो 2T by R के इक्वल हो, लेट्स से इफ इट इज इक्वल टू 2T by R, तो डेफिनेटली C और B पॉइंट पे प्रेशर इक्वल हो जाएगा। हाँ। इट्स अ कॉमन सेंस, आपको थोड़ा अपना दिमाग ही चलाना पड़ेगा, इतना हाँ हार्ड सर। क्लियर? यस। ओके, किसी और स्टूडेंट कुछ डाउट है क्या इसमें? कोई भी टाइप का डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड होगा?
देखो जब ये सिचुएशन याद है, इसमें भी हाँ, जब ये राइज नहीं हुआ था, व्हेन इट वाज नॉट राइजेस, तब सी पॉइंट पे तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ठीक है, सी पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ठीक है, और बट सी पॉइंट पे जो प्रेशर था इट वाज लेसर देन बी बाय 2T/R। यहाँ पे भी ये राइज हुआ है नो डाउट, अभी भी सी पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा ऐसे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंसीडरिंग दैट। पहले भी दोनों था अभी साइड का भी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसल आउट हो जाएंगे। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बी पे भी रहेगा, सी पे भी रहेगा। देखो इतना सिंपल है, आप पता नहीं इसको कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहे हो। जब ये राइज नहीं हुआ था, व्हेन इट वाज नॉट राइजेस, राइज नहीं हुआ था, तब भी तो सी पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेयर था ना। हाँ, अभी ये एच कॉलम एक्स्ट्रा है, दिस एच इज एडिशनल कॉलम, अभी भी yes, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्लेइंग नो रोल, पहले भी था अभी भी है, उसमें पढ़ना ही नहीं है हमको। ठीक, बी का जो सिचुएशन है, बी वैसा का वैसे ही है, पॉइंट बी जैसे यहाँ पे था, सेम इज पॉइंट बी ओवर हियर, बी में तो कोई डिफरेंस नहीं है। सी के ऊपर पहले भी एटमॉस्फेयर था, सी के ऊपर अभी भी एटमॉस्फेयर है, खाली सी में डिफरेंस क्या है कि सी के ऊपर एडिशनली ρgh आ गया है, ये चीज, यही एक चीज एडिशनल है, ठीक है। एटमॉस्फेयर पहले भी था सी के ऊपर, अभी भी है, इट डजंट मेक एनी सेंस टू इंक्लूड एटमॉस्फेयर। सी यहां तक डिराइव कर लो पहले, 2T/ρRg, ठीक है। इसमें अभी नाउ लिसन केयरफुली, R इज अ रेडियस ऑफ मेनिस्कस। जब हमने वो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप की फॉर्मूला बनाई थी, ट्राई टू रिकॉल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, इट वाज 2T/R, तो उसमें R क्या था, R was the radius of curved surface. Here, that curved surface you are calling as meniscus. So R is the radius of meniscus. देखो ये फॉर्मूला आई होप आपने डिराइव कर ली, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉरवर्ड। सी आगे बढ़ता हूं मैं अभी, लुक हियर, हमें जो ये फाइनल फॉर्मूला है ना, वी वांट द फाइनल फॉर्मूला नॉट इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस, इसके रेडियस ऑफ मेनिस्कस के टर्म्स में नहीं चाहिए, वी वांट द फाइनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कैपिलरी, ठीक है। आई रिपीट, I do not want final formula in terms of radius of meniscus. I want final formula in terms of radius of capillary. क्यों? क्योंकि जो meniscus है ना, इसको आप रेडियस आप मेजर नहीं कर पाओगे, it is difficult to measure radius of this meniscus, but radius of capillary can be measured because capillary we have made, ठीक है। So देखो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, just it's a few steps are more, okay। What we got the formula of H 2T/ρRg, ओके, बट मुझे ये R को रिमूव करना है, आई वांट टू ब्रिंग रेडियस ऑफ कैपिलरी, तो देखो कैसे किया जाता है, देखो ध्यान से, सपोज दिस इज कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी का मैंने मैग्नीफाइड डायग्राम बनाया, दिस इज अ कैपिलरी, लेट्स से दिस इज मेनिस्कस, ये मेनिस्कस है, ठीक है। देखो तो ऐसे अज्यूम करो दैट मेनिस्कस इज अ पार्ट ऑफ दिस स्फीयर, meniscus is a part of this sphere, C is a center of this imaginary sphere, C is a center of imaginary sphere. So ये देखो ध्यान से, see this R is the radius of this imaginary sphere, है ना। So this R is the radius of meniscus, ये R यहाँ पे है, this R is here, ये क्योंकि बहुत imaginary चीज है, it will be very difficult for us to measure this R, that's why we want to change it and we want to bring radius of capillary. अब देखो कैपिलरी का रेडियस कैसे लाएंगे, सी कैपिलरी इज सिलिंड्रिकल इन शेप, ये देखो ऐसे, ये कैपिलरी है, राइट, कैपिलरी इज सिलिंड्रिकल, सो लुक एट दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी, दिस इज रेडियस ऑफ कैपिलरी, सो अप्रोक्सीमेटली मैं ऐसे कर सकता हूं, ये ना रेडियस ऑफ कैपिलरी, दिस विल बी रेडियस ऑफ कैपिलरी, ये देखो सेम, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये जो मेनिस्कस है, दिस इज मेनिस्कस, हाँ, इज इट कर्वी ना, मेनिस्कस कर्वी है,
So इस curvy surface पे if I draw tangent, I repeat, meniscus is curved surface. If I draw tangent on the curved surface through point of contact, ये देखो, ये क्या देखो, it's a tangent drawn on the curved surface through point of contact. ये जो एंगल है, देखो ये एंगल जिसको मैंने थीटा लिखा है, याद है ये? इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर द लिक्विड एंड द सॉलिड पेयर. थीटा एंगल एंगल ऑफ कांटेक्ट है. अब देखो सिंपल ज्योमेट्री से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ये थीटा है ना, एंगल ध्यान से देखो इस एंगल को, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा. और अगर ये 90 माइनस थीटा है ना, तो इट कैन बी प्रूवन दैट दिस विल बी अगेन थीटा. ये देखो मैं समझा देता हूँ. Look at this magnified diagram. This is theta. So this angle will be 90 minus theta. क्योंकि ये देखो ये 90 minus theta होगी. अब देखो this is radius on the curved surface. This is tangent on the curved surface. Radius and tangent are perpendicular to each other. So this is 90 degree over here. ये 90 है. This is 90. This is 90 angle. अगर ये 90 है, this is 90 minus theta, so this will be theta. ठीक है. अब देखो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, in this triangle if you apply cos theta in this triangle, you will get capital R by small r. theta अप्लाई करने में आपको ये मिलेगा. From here I can get that small r is equal to capital R divided by cos theta. ये चीज मुझे मिल सकती है. Small r, I repeat, small r is a radius of meniscus. Capital R is a radius of capillary. ये small r की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. Substitute this small r over here. तो h की एक न्यू फॉर्मूला आ जाएगी, which is 2t by rho rg divided by cos theta. तो cos theta ऊपर आ जाएगा. This formula you will get. This is ultimately final formula for capillary rise. ठीक है. इसमें theta is an angle of contact between this liquid and the capillary. Capillary और liquid के बीच में जो angle of contact है वो है. This capital R is a radius of capillary. ठीक है. Clear? कुछ confusion है अभी भी इस derivation में, तो open your mic and speak, no problem. एक बार फिर जो भी confusion है अभी भी पूछ सकते हो. But make it very clear. ठीक है. ठीक है. देखो एक बार तो आपको खुद को भी ध्यान से सोचना ही पड़ेगा. If you just अगर आप अपना ब्रेन ज्यादा यूज नहीं करेंगे तो भी आंसर नहीं आएंगे. आपको खुद थोड़ा थिंकिंग करनी पड़ेगी इस पे, और एक दो प्रैक्टिस करने के बाद, एक दो बार राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद आराम से समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये फॉर्मूला समझ. हाँ बोलो सर. बोलो. हाँ सर, ये जो थीटा है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो टेंजेंट है वही है. हाँ देखो मैंने उस दिन नहीं बताया था कि एंगल ऑफ कांटेक्ट सॉलिड और लिक्विड पेयर पे डिपेंड करता है. यहाँ पे हाँ, जो लिक्विड कैपिलरी में राइज हो रही है वो लिक्विड और कैपिलरी के बीच की एंगल ऑफ कांटेक्ट है. दिस एंगल विल डिपेंड ऑन लिक्विड एंड द कैपिलरी. कैपिलरी इज अ सॉलिड एंड लिक्विड और कैपिलरी के पेयर पे डिपेंड करेगी ये एंगल ऑफ कांटेक्ट. ठीक है. ओके, आई होप डाउट्स क्लियर है सबके. ठीक. सो ये फॉर्मूला समझ के लो, 2t cos theta डिवाइड बाय rho rg. ठीक है. इतना इजी नहीं है चैप्टर, आई नो, बट एक एक चीज मैं स्लोली बता रहा हूँ, डिटेल में 2-3 बार सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए ये चीजें. ठीक है. बट यू आल्सो हैव टू रिवाइज इट लेटर ऑन, नहीं तो नहीं होगा ये फिर. ठीक है. सो आई होप ये h का फॉर्मूला समझ गया आपको. आगे बढ़ता हूँ मैं. नाउ लिसन, एक इमेजिन करो दैट आई एम हैविंग अ वेसल. मेरे पास एक वेसल है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग डिफरेंट कैपिलरीज, अलग अलग कैपिलरीज डाल रहा हूँ. ठीक है. तो इन ऑल दीज कैपिलरीज लिक्विड विल राइज. ठीक है. बट सपोज द रेडियस ऑफ ऑल दीज कैपिलरीज आर डिफरेंट. किसी कैपिलरी का रेडियस कम है, किसी कैपिलरी का रेडियस ज्यादा है. रेडियस ऑफ डिफरेंट कैपिलरीज आर डिफरेंट. ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में ये फॉर्मूला अगर मैंने लगाई, T will be same for all capillary. T क्या है पता है? T is the surface tension of the liquid. That T will be same for all capillaries. Theta will be same for all capillaries. Rho is the density of the liquid. Density of liquid वो भी same होगा तीनों.
लेकिन ये मैंने कहा सपोज ऑल कैपिलरीज आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट रेडियस, तो आर डिफरेंट होगा. लिविंग आर, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट फॉर कैपिलरीज. सो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं H विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. ये पॉइंट हम लोग लिख पाएंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग, if you are using different capillaries, all capillaries are made up of glass. If you are using different capillaries, all capillaries made up of glass, they are dipped in the same liquid, but radius of capillaries are different. ये different है, तो H will be inversely proportional to R होगा. That means the capillary which is very thin, जो सबसे पतली कैपिलरी होगी, उसका रेडियस सबसे मिनिमम होगा. जिसका रेडियस सबसे मिनिमम होगा उसमें हाइट सबसे ज्यादा मैक्सिमम जाएगी. सो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. एज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी विल बी स्मॉल, हाइट विल बी मोर. इसलिए हम लोग कैपिलरी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग मोटा सा पाइप यूज नहीं कर सकते. अगर आप लिक्विड के अंदर मोटा पाइप डाल दोगे, ऐसा आपने कैपिलरी नहीं है आपके पास, यू आर पुटिंग अ वेरी थिक पाइप इनसाइड द लिक्विड, तो पाइप का रेडियस बहुत ज्यादा होता है, तो हाइट बहुत ही कम हो जाएगी और वो नेग्लिजिबल हाइट होगी, आपको दिखेगा भी नहीं. दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू सी दिस एक्सपेरिमेंट, आपको ये देखना है, तो आपको देखने के लिए ये हाइट सफिशिएंट होनी चाहिए, तभी दिखेगा. हाइट सफिशिएंट होने के लिए रेडियस कम होना चाहिए. दैट्स व्हाई इन द कैपिलरी लिक्विड राइजेस. बट आप मोटा मोटा ट्यूब डाल देंगे पाइप के पानी के अंदर, तो मोटे ट्यूब में आपका कैपिलरी मतलब राइज नहीं होगा लिक्विड. सो रेडियस शुड बी स्मॉल so that H increases. Remember, H is inversely proportional to radius. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना. ओके, अच्छा, इसी चीज को जो मैंने अभी बताया, ये सेम पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं. सपोज फॉर वन कैपिलरी हाइट इज H1 and radius is R1. ठीक है, फॉर वन कैपिलरी हाइट इज H1, radius is R1. ये H1 है और ये R1 है. ठीक है, तो H1 R1 की प्रोडक्ट ले लो. द प्रोडक्ट ऑफ H1 R1 विल बी 2t cos थीटा बाय रो g. अब दूसरी कैपिलरी के लिए क्या होगा, यहाँ पे आएगा H2 और रेडियस आएगा R2 फॉर सेकेंड कैपिलरी. तो यहाँ पे भी H2 R2 ले लो. द H2 R2 विल कम 2t cos थीटा बाय रो rg. इससे आप समझ सकते हो, यू कैन डिराइव दिस फॉर्मूला. H1 R1 इक्वल्स टू H2 R2. That is product of HR will be constant. Product of HR constant is that H into R for the one capillary will be equal to H into R for second capillary. वो आप यहाँ से भी समझ सकते हो. When you remove this proportionality sign and put constant डाल दो, तो फिर R को यहाँ shift करो, you can say HR product is constant. Important result है. तो H into R for the one capillary can be equal to H into R for second capillary. ये देखो, इस फॉर्मूला में आपको ये 4 टर्म्स हैं. आउट ऑफ 4 टर्म्स, समटाइम 3 टर्म्स विल बी गिवन टू यू एंड यू नीड टू फाइंड द 4th टर्म. तो ये यूज कर सकते हैं हम लोग फॉर्मूला. ठीक है, सो आई होप ये पहला मेथड था. दिस वाज अ वेरी फर्स्ट मेथड टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर कैपिलैरिटी. ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर कैपिलैरिटी. ठीक है, आज मैं सेकेंड मेथड भी समझा देता हूँ. देन whichever method you find easy, you can do the problems from, you can use it in exam. Okay, now let's see the method 2 to derive the formula. Another method to derive the formula. See the different method now. Imagine this is capillary dipped in a liquid. ऐसे ड्रॉ कर लो आप मेरे साथ, ड्रॉ along with me. ठीक है, now suppose the liquid has rises in this capillary. Liquid rise हो गया है and this is a shape taken. ठीक है, liquid has rises up to the height of H. See this. We want to find out this H. एक बात बताऊं, ये जो डायग्राम आपने बनाया है, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा 3 डायमेंशनली बनाऊं, इफ आई मेक इट 3 डायमेंशनल, सो ये जो कैपिलरी है, एक्चुअली दिस कैपिलरी सिलिंड्रिकल ट्यूब. सो क्योंकि ये सिलिंड्रिकल है, तो इसका जो ये मेनिस्कस है ना, एक्चुअली मेनिस्कस की शेप ऐसे होगी. दिस विल बी द शेप ऑफ मेनिस्कस इफ आई ड्रॉ 3 डायमेंशनली. ये कैसा है, इट इज लाइक अ बाउल, बाउल के जैसा है, हेमिस्फेरिकल बाउल. ऐसा होगा कैपिलरी. नाउ
सी रोहित, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, टेंजेंट ऑन द सरफेस, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो करना क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल कॉलम है ना, दिस सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ h हाइट, लिक्विड के कॉलम को सिलेंड्रिकल कॉलम बोल रहा हूं मैं, तो दिस लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, आई वांट टू कैलकुलेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस कॉलम, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो कॉलम है ना, इसके ऊपर जो एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा, डाउनवर्ड फोर्स, दैट विल बी mg, डाउनवर्ड फोर्स जो एक्ट होगा वो mg होगा, वेयर m इज द मास ऑफ दिस लिक्विड इन द कॉलम, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज को मैं कॉलम बोल रहा हूँ, दिस थिंग आई एम कॉलिंग एज अ कॉलम। ये क्या है, इट इज अ सिलेंड्रिकल लिक्विड, लिक्विड इन द सिलेंडर, दिस आई एम कॉलिंग एज अ कॉलम। इसका जो वेट होगा कॉलम का mg, वो इसके ऊपर एक्ट होगा डाउनवर्ड। अब इसके ऊपर दूसरे जो फोर्सेस हैं वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, सी बाकी फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, लुक एट दिस, थोड़ा ध्यान से देखना, शायद ये कंफ्यूजन हो सकता है। सी ये क्या पता है, इट्स द वॉल ऑफ द कैपिलरी, ये कैपिलरी की वॉल है, इट्स अ वॉल ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। ये जो है दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मींस हियर द लिक्विड सरफेस इज इन कांटेक्ट विथ अ वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे व्हाट हैपेंस दैट इस पॉइंट पे क्या होगा, दैट द molecules of the capillary will attract the liquid molecules which are present on surface, the molecules of the capillary will attract liquid molecules, जिसको हम लोग adhesive forces बोलते हैं, okay। जो कैपिलरी के मॉलिक्यूल्स हैं, कैपिलरी के मॉलिक्यूल्स, सॉलिड मॉलिक्यूल्स, दे विल अट्रैक्ट द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसको हम लोग एडिसिव फोर्सेस बोलते हो, तो वो मैं एडिसिव फोर्सेस शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने शो किए एडिसिव फोर्सेस, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये एडिसिव फोर्सेस ऐसे कैसे बना दिया आपने, देखो समझाता हूँ मैं। सी होता क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे आप देखोगे ना, सरफेस ये है, दिस इज सरफेस, ठीक है, दिस इज सरफेस, इस सरफेस को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसे सरफेस है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, थिंक लाइक दिस, दिस इज वन मॉलिक्यूल ओवर हियर, दिस मॉलिक्यूल विल बी अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस लाइक दिस, ठीक है। इट विल टेक टाइम, थोड़ा समझने में ध्यान दो। ये एक मॉलिक्यूल है लिक्विड का, ओके, बट इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ये वही है मॉलिक्यूल, इट्स अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सो ये क्या फोर्सेस मैंने ड्रॉ किए, दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल बाय द अदर मॉलिक्यूल व्हिच आर प्रेजेंट ऑन सरफेस, सरफेस पे जो दूसरे मॉलिक्यूल है वो इस मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गई वॉल ऑफ द कैपिलरी, ये सपोज ये वॉल जिसको मैंने लिखा है ये कैपिलरी की वॉल है, इट्स अ कैपिलरी एक्चुअली, ठीक है। सो कैपिलरी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है, जो कैपिलरी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर भी ये फोर्स लगेगा, थिंक दिस इज आल्सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है ना वो वॉल को ऐसे फोर्स लगाएंगे, इट्स लाइक दे विल पुल द वॉल लाइक दिस, I repeat, this is a force on the wall, wall मतलब ये कैपिलरी की वॉल है, it's a force on the wall by the surface molecules, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है ना वॉल पे ये फोर्स लगा रहे हैं, तो उससे क्या लगता है वॉल इधर जाएगी क्या, वॉल जाएगी उधर, वॉल के ऊपर ये एक्शन लग रहा है तो वॉल रिएक्शन देती है, वॉल क्या करेगी, वॉल इन मॉलिक्यूल्स को ऊपर ऐसे खींचेगी, वॉल विल पुल दिस मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, इन्हीं फोर्सेस को आप एडिसिव कोहेसिव बोलते हो। सो यहाँ पे हम लोग है ना खाली सरफेस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस राइट नाउ। सो दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल बाय द सरफेस मॉलिक्यूल, सो दिस इज अ फोर्स, ये रिएक्शन है, दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस बाय द वॉल, ठीक है। देखो वही मैंने फोर्स यहाँ पे शो किया, ये फोर्स क्या है पता है, इट्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस बाय द वॉल, ठीक है। तो ये फोर्स इस सरफेस पे लग रहा है बाय द वॉल, ठीक है।
why I am showing only this force over here? Because today I am interested in calculating the forces acting on this liquid. I am not interested in calculating the forces acting on the wall. I am interested in the forces acting on the liquid. तो ये जो फोर्स है ना वो लिक्विड पे लग रहा है बाय दी वॉल, ठीक है, ये फोर्स हमको कंसिडर करना है, ठीक है। ये फोर्स ऐसे भी लगेगा, इस तरफ भी लगेगा, लाइक दिस। सी ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, इट हैज टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट। ध्यान से देखो, ये जो फोर्सेस मैंने शो किए ना, आई रिपीट लास्ट टाइम, these are the forces acting on the liquid surface by the wall, ठीक है। तो वॉल का रिएक्शन है, ठीक है, फोर्सेस लगेंगे वॉल की तरफ से लगेंगे सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये फोर्सेस शो करो। Now look here, this is angle of contact, ये थीटा यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। तो अगर आप इस फोर्स को रिजॉल्व करोगे ना, so the vertical component will be F cos theta, horizontal component will be F sin theta. Vertical component will be F cos theta, horizontal component will be F sin theta. Similarly, इस साइड भी फोर्स है, इसको भी रिजॉल्व करो। Vertical component will be F cos theta, horizontal component will be F sin theta. These are the forces which are acting on the surface by the wall. Okay, तो ये सारे फोर्सेस मैं बोल सकता हूँ सरफेस पे लग रहे हैं, मतलब मिनिस्कस पे लग रहे हैं, मतलब these are the forces acting on the column, ठीक है। अब देखो इसमें F sin कैंसिल होगा, ठीक है। कैन यू इमेजिन दिस डायग्राम 3 डायमेंशनली ना, ये बाउल आपको समझा था 3 डायमेंशनली, वैसे ही ये फोर्सेस यहाँ पे भी होंगे, लाइक दिस। These forces will be overall acting on the circumference. ये सारे forces circumference पे act होंगे, ठीक है। These all forces will act on circumference, ठीक है। ये सारे forces circumference पे act होंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, if I take F, let's say ये जो सारे forces है ना, पूरे forces को मिला के, all these forces which are acting on the circumference, combinedly सारे forces को मैं F बोलता हूँ। Let's say this F denotes all the forces togetherly. ये forces अगर आपको पता है इतनी length पे act हो रहे हैं, they are acting on this much length, 2 pi r. देखो इन सारे forces को, all these forces which are acting, that total forces I am taking as F, and they are acting on the circumference of this capillary. They are acting on circumference of this capillary. So F by 2 pi r will give you surface tension. Force per length gives you surface. So F will be given by 2 pi RT. ये आपको F मिल गया, ऐसे भी F निकाल सकते हैं। देखो, these are the forces acting on this surface, but these forces are acting on the how much length they are acting. On this length they are acting, na? These forces are acting on 2 pi r length. So force by length will give you T. F will be this. But here I am again saying this F I am taking the total force. पूरा force हमने F ले लिया। अब देखो F sin will cancel each other. Only F cos theta components will be acting, ठीक है। So खाली cos component act होंगे, तो इसलिए अब क्या करो, both sides you multiply with cos. So F cos theta, which is 2 pi RT cos theta. This F cos theta is a net upward force. जो upward force liquid पे लग रहा है ना, वो इतना है 2 pi RT cos theta. देखो यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहे हैं अल्टीमेटली आप उन सबका कौन सा कंपोनेंट ले रहे हो, कॉस कंपोनेंट ले रहे हो, ठीक है। इन सारे फोर्सेस को ऐड करोगे तो कॉस कंपोनेंट कॉमन आ जाएगा, सो इट विल बी फोर्स कितना लगेगा, टोटल F into cos theta. Total F into cos theta is a total force. This is an upward force acting on the liquid column. लिक्विड कॉलम के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो ये है। ये पहले आप नोट करके लो, ठीक है, बाद में आपके डाउट्स में क्लियर करता हूँ। नोट डाउन दिस फर्स्ट, नोट इट डाउन। Yeah, so the upward force acting on the cylindrical column is 2 pi RT cos theta. It's an upward force acting. Downward force कौन सा act हो रहा था याद है? Downward force acting was mg.
So take these two equal. Why? Because this cylindrical column is at rest. Cylindrical column rest पे है, equilibrium में है. So downward forces acting on this column must be equal to upward forces acting on this column. Downward forces I have taken equal to upward forces. इसमें I'm sure students को ये upward forces में confusion हो रहा होगा. एक बहुत ही क्विकली मैं बता देता हूँ फिर से इनके बारे में, बट अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी है, यू कैन गो फॉर मेथड 1 टू प्रूव दिस फॉर्मूला. ठीक है, एक बार क्विकली बता देता हूँ. कंसीडर सरफेस, सरफेस को कंसीडर करो. सरफेस विल अट्रैक्ट द वॉल मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. सरफेस विल अट्रैक्ट वॉल, सो वॉल विल आल्सो अट्रैक्ट द सरफेस. दिस F is a force acting on the surface molecules by the wall. ठीक है, ये फोर्स सरफेस पे लग रहा है बाय द वॉल. सरफेस ऐसी है, दिस इज सरफेस. ये फोर्स, इस सारे टोटल फोर्सेस, सपोज ये जो सारे फोर्स है ना, टोटली कंबाइन करके ये सारे फोर्स हैं वो 2 पाई आर लेंथ पे लग रहे हैं. दे आर एक्टिंग ऑन 2 पाई आर लेंथ. सो F by 2 पाई आर विल गिव यू T. इससे आप F निकाल लो, बट F इज अ टोटल फोर्स. टोटल फोर्स का कॉस कंपोनेंट हमको लेना पड़ेगा, देन ओनली विल गेट अ टोटल अपवर्ड फोर्स एक्टिंग. Then take total upward force equal to downward force. Downward force is mg. अब मैं आगे बढ़ता हूँ. ये m क्या है पता है? This m is a mass of the liquid. This m is a mass of liquid present in the cylinder. ठीक है? m is a mass of the liquid present in this cylinder. तो mass को हम लोग लिख सकते हैं density of the liquid into volume of the liquid into g. Mass को लिख सकते हैं density into volume. Okay, so this m I'm writing as rho into volume. Volume किसका? Volume is liquid का. Is this cylindrical volume ना? ये सिलेंडर है ना? तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. देखो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास इंटू जी इक्वल्स टू 2 पाई आर टी कॉस थीटा. See to it. So RR gets cancelled from both sides. Pi gets cancelled from both sides. इसके बाद आप h कैलकुलेट करो, because you need to find h out of this. h क्या आ रहा है देखो, it's coming 2t cos theta divided by rho r g. यही फॉर्मूला आपने फर्स्ट मेथड में भी सेम डिराइव हुई है. You can compare. So we are getting same result again. This is a second method of this one. यहाँ पे no doubt ये डेरिवेशन बहुत छोटा है, but this is slightly difficult to understand this concept. ठीक है? So ultimately we'll get h equals to 2t cos theta divided by rho rg. Okay. As an exercise, आप आज ही के आज इसको टेक्स्ट बुक से पढ़ के देखना. टेक्स्ट बुक से शायद ज्यादा क्लियर हो, because lot of explanation will be written in the textbook. आज के आज इस टॉपिक को पढ़ लेना, then it will be more clear to you. ठीक है? Make this thing clear. अब देखो, बिफोर आई गो फर्दर, अगर कुछ डाउट है, ओपन योर माइक एंड आस्क रिलेटेड टू कैपिलरिटी. हेलो सर. हाँ बोलो. सर यहाँ पर जो लास्ट में स्मॉल आर आया है वो क्या है? इट्स अ रेडियस ऑफ कैपिलरी. देखो कैसे, ये जो हमने m लिखा, m को लिखा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपने लिया. वॉल्यूम ऑफ दिस, इस वॉल्यूम का आपने लिखा पाई आर स्क्वायर एच, वेयर एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. अगर आप इस सिलेंडर का रेडियस लोगे, इस सिलेंडर का रेडियस, तो वो तो रेडियस ऑफ कैपिलरी होगा ना. हाँ सर. सर लास्ट टाइम जो आपने दिया था फॉर्मूला, उसमें तो स्मॉल आर वो था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था. देखो यहाँ पे मैंने खाली सिंबल स्मॉल आर दिया है. Here I have given a अच्छा, but actually ये रेडियस ऑफ कैपिलरी ही है. ओके सर. यहाँ पे मैंने स्मॉल आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस को लिखा था ना. हाँ हाँ हाँ. यहाँ पे स्मॉल आर इज अ सिंबल फॉर रेडियस ऑफ कैपिलरी. ये फॉर्मूला वही है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ही है ये यार. यहाँ पे रेडियस ऑफ मेनिस्कस नहीं है. ओके सर. रेडियस ऑफ मेनिस्कस पता है कब आता है? जब आप एक्सेस प्रेशर लेते हो ना, व्हेन यू आर टेकिंग एक्सेस प्रेशर 2t by r. 2t by r में r इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस. यहाँ पे हमने 2t by r यूज ही नहीं किया देखो कहीं पे भी. तो यहाँ पे रेडियस ऑफ है ही नहीं, इट्स अ रेडियस ऑफ कैपिलरी. हाँ सर, वही डाउट था कि वहाँ भी स्मॉल आर था, तो इसलिए हो सकता है वो. आपको देखो कंफ्यूजन हो रहा था, इसको कैपिटल आर कर दो, चलेगा यहीं पे. ठीक है सर. ओके सर, थैंक यू. एनी अदर डाउट? ठीक है, क्लियर है कैपिलरी.
So today onwards, please remember the formula of capillary. It's 2t cos theta divided by rho rg. ठीक है, 2t cos theta divided by rho rg. आज के आज इसको एक बार टेक्स्ट बुक से भी रिवाइज करना, then it will be more clear to you. ठीक है. So here we finished capillarity. इसके साथ साथ देखो अभी सरफेस टेंशन खत्म होने पे आ गया है. ठीक है, सिर्फ सरफेस टेंशन में एक माइनर पॉइंट बाकी है, छोटा सा पॉइंट बाकी है. वो टॉपिक है, पुट दिस हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन मतलब सरफेस टेंशन कब डिक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है. नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस, सबसे पहले आपको सरफेस टेंशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होता है. ठीक है, खाली सुनो जो मैं बोल रहा हूँ. सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड by which the liquid has a tendency to minimize its own area. हर लिक्विड की जो सरफेस है अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है. That property is known as surface tension. ठीक है. अब सरफेस टेंशन किसी लिक्विड में ज्यादा होता है, किसी लिक्विड में कम होता है. ठीक है. वाटर हैज अ लेस सरफेस टेंशन, मर्क्यूरी हैज मोर सरफेस टेंशन. ठीक है. सो सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए. ठीक है. अब देखो, I'm starting with the factors affecting surface tension. पहला फैक्टर है effect of temperature. Effect of temperature. That means if we increase the temperature of a liquid, तो उसका surface tension increase होगा कि decrease वो हमें जानना है. तो रूल ये है that as the temperature of the liquid you increase, the surface tension of the liquid decreases. जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, सरफेस टेंशन कम होने लगता है, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस. ऐसा क्यों है? आई विल टेल यू द रीजन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन दिस. ठीक है. व्हाई इज इट सो? बिकॉज ये देखो, इमेजिन दैट एक सरफेस है. ठीक है. ऑन दिस सरफेस दीज आर द वेरियस मॉलिक्यूल्स. ये सब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस. ठीक है. इन मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है. देयर इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. These forces, if you calculate the intermolecular forces, when you calculate, divide by length on which they are acting, this is equal to surface tension. याद है by definition. हाँ. अब क्या होता है देखो, if you increase the temperature, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होता है, the distance between molecules goes on increasing. Liquid expands on heating. Liquid expand होते हैं, ये जो molecules हैं, they do random motion, and ultimately distance between molecules keeps on increasing as you increase temperature. अगर इन molecules के बीच में distance increase हो गया, the force of attraction will decrease between them. ये force decrease हो जाएगा. अगर ये force decrease हो गया, that is surface tension will decrease, and the tendency of the surface to shrink itself, the tendency will also decrease. ठीक है. यहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स इमेजिन करो. हेयर ये मॉलिक्यूल को ऐसे बाकी मॉलिक्यूल्स खींचेंगे अपनी तरफ. ठीक है. अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस. ठीक है. तो ये फोर्स कम हो गया तो लिक्विड की टेंडेंसी श्रिंक करने की वो भी कम हो जाएगी ना. सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, रिमेंबर. ठीक है. ठीक है. अब एक बात, इन दी 11th स्टैंडर्ड आपने शायद एक फॉर्मूला देखा होगा, वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ. जस्ट टेल मी यस और नो दैट आपने ये फॉर्मूला देखा है क्या. लेंथ ऑफ रॉड एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. थर्मल एक्सपांशन टॉपिक में आता है. थर्मल एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन बोलते हैं इसको, लीनियर एक्सपांशन, देन एरिया एक्सपांशन. It's a length after heating the rod. It's an initial length. Alpha is known as coefficient of linear expansion. So I hope हाँ सब student yes बोल रहे हैं. ठीक है. Now stop messaging. सब student yes बोल रहे हैं. So everybody has seen this formula. देखो इस फॉर्मूला में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ लेंथ बढ़ती है. That's why this formula is there. Here also surface tension changing. Hello, please mic off करो. See, this formula
what it gives you, this formula gives you the variation of length with temperature. टेम्परेचर बढ़ने पे लेंथ कैसे चेंज होता है, ये वो फॉर्मूला है. सेम वे हेयर ऑल्सो टेम्परेचर चेंज होने पे सरफेस टेंशन चेंज हो रहा है. सो सरफेस टेंशन ऑल्सो ओबे सिमिलर फॉर्मूला. सरफेस टेंशन के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस के साथ. ये फॉर्मूला ऐसे लिखनी है, टी इक्वल्स टू टी नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी. देखो ये फॉर्मूला आपको सिमिलर लगेगी, मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में. दिस कैपिटल टी इज अ सरफेस टेंशन एट T डिग्री सेल्सियस. स्मॉल टी जो है ना, इट्स अ टेम्परेचर. कैपिटल टी जो है ना, इट्स अ सरफेस टेंशन. इट्स अ सरफेस टेंशन एट T डिग्री सेल्सियस. दिस इज सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस है और यहाँ पे माइनस है. ऐसा क्यों है? आपको याद होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ तो बढ़ती है. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लेंथ इंक्रीजेस. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस. दैट्स व्हाई ये माइनस साइन आती है. आपको ये फॉर्मूला डिराइव नहीं करनी है, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. इट्स अ फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन, हाउ इट चेंजेस विद टेम्परेचर. ठीक है, अब देखो एक लास्ट पॉइंट. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस. ठीक है, तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ, सरफेस टेंशन डिक्रीज होते जाएगा. तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड विल बिकम 0. द टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन बिकम 0, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. ये नोट कर लो. द टेम्परेचर एट विच surface tension becomes 0, that temperature is called as critical temperature. ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद सरफेस टेंशन 0 हो जाता है, that is called critical temperature. ठीक है, और ये फॉर्मूला प्लीज नोट करके लेना. ऑन दिस फॉर्मूला देयर कैन बी न्यूमेरिकल. ठीक है, ये फॉर्मूला इसके सिमिलर है ना, यू कैन अंडरस्टैंड, सिंपल. ठीक है, नाउ लिसन carefully. This first point we finished, effect of temperature. इसका मैं खाली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ इस चीज का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. एक बार बता, जब आप व्हेन यू कंज्यूम टी और कॉफी और सूप, चाय कॉफी या जब सूप पीते हो, जब आप कोई लिक्विड पीते हो, तो वो गर्म अच्छी लगती है कि ठंडी अच्छी लगती है? डेफिनेटली गर्म अच्छी लगती है. हॉट कॉफी इज बेटर देन कोल्ड. नाउ सम स्टूडेंट विल से नो सर वी लाइक कोल्ड कॉफी. No, but usually taste किस में ज्यादा बेटर आता है? हॉट चीजों में. एटलीस्ट हॉट सूप इज बेटर देन कोल्ड सूप. ओके, तो ऐसा क्यों है? गर्म लिक्विड अच्छी लगती है, ठंडी लिक्विड उतनी अच्छी नहीं लगती है. उसका रीजन ये है दैट जब लिक्विड गर्म होती है, लेट्स से सूप इज हॉट, ठीक है, तो मतलब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है. टेम्परेचर ज्यादा होने पे उसका सरफेस टेंशन कम होता है. ठीक है, सरफेस टेंशन कम होने की वजह से, बिकॉज ऑफ लेस सरफेस टेंशन, ठीक है, द लिक्विड विल नॉट ट्राइज टू मिनिमाइज इटसेल्फ. लिक्विड मिनिमाइज होने की ट्राई नहीं करेगी. उससे क्या होगा, वो लिक्विड फैलती है, लिक्विड स्प्रेड. जब आप सूप पीते हो ना, गर्म सूप रहता है, उस गर्म सूप का टेम्परेचर ज्यादा होता है, सरफेस टेंशन कम होता है. सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो जो सूप है, इट इजीली स्प्रेड्स ऑन योर टंग. वो इजीली स्प्रेड होता है. ठीक है, वो लिक्विड श्रिंक होने का ट्राई नहीं करती है, इट स्प्रेड्स इजीली. स्प्रेड होने की वजह से वो आपके टंग्स में जो पोर है, आपकी जो टंग है, माउथ के अंदर जो टंग है, टंग में पोर्स होते हैं, वो पोर के अंदर लिक्विड चली जाती है. एज अ लिक्विड गोस इनसाइड द पोर्स ऑफ द टंग, तो वो टंग के अंदर जो टेस्ट बड्स होते हैं, टंग के अंदर टेस्ट को एक्टिवेट करने वाली कुछ टिश्यूज होते हैं, टेस्ट बड्स बोलते हैं उनको. जो सूप है वो टंग के अंदर चला जाता है और वो टेस्ट बड्स को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए हमें फिर फीलिंग आती है टेस्टी सूप की. आपको सूप स्वीट है कि बिटर है वो सब पता चलता है टेस्ट बड से. इसलिए हॉट सूप इज बेटर देन कोल्ड सूप. एक सिंपल ऐसे याद रखो, हॉट सूप का सरफेस टेंशन कम होता है, बिकॉज ऑफ लेस सरफेस टेंशन इट विल नॉट ट्राई टू श्रिंक इटसेल्फ, इट विल ट्राई टू स्प्रेड. वो इजीली स्प्रेड होता है और वो टंग के पोर्स के अंदर चला जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी फील टेस्टी सूप. ठीक है, इसलिए गर्म चीजें अच्छी लगती है. लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं, गर्म लिक्विड अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू द कूल लिक्विड. गेटिंग? अब प्लीज इसमें आप एक्सेप्शन मत ढूंढना. कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हमें कोल्ड कॉफी अच्छी लगती है, वो सब ये नहीं है, बट टेस्ट ज्यादा बेटर आती है हॉट कॉफी की. गेटिंग? सो दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर.
So we are discussing factors which are affecting surface tension. ठीक है, सेकेंड फैक्टर मैं डिस्कस कर रहा हूं. सेकेंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी. इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी. ठीक है, अब ये क्या रहता है, इफ यू टेक अ लिक्विड, आपने एक लिक्विड लिया, जैसे यू टेक अ वाटर. ठीक है, अगर आपने इस वाटर में बाहर से कुछ भी डाल दिया, एनीथिंग दैट यू पुट इन द वाटर, दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी. ठीक है, अब देखो इम्प्योरिटीज आर यूजुअली ऑफ टू टाइप्स. इम्प्योरिटी दो टाइप की होती है. वन इज सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है ये. वन इज सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, सेकंड इज इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज. ओके, अगर वाटर की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट वाटर, वाटर में जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है, सोल्यूबल, इट इज शुगर, salt, these are the very much soluble impurities in the water. Insoluble impurities in the water, if I talk, oil is insoluble impurities. If you put detergent, it's an insoluble impurity. ठीक है, और if you put dust, it's insoluble. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं. अब देखो होता क्या है, it is being said that if you put the soluble impurities in the water, अगर आप soluble impurities डालेंगे, so because of soluble impurities, surface tension do increases. Surface tension बढ़ता है on putting soluble impurities. ठीक है, जितना आप soluble impurity डालते जाएंगे उतना surface tension बढ़ते जाएगा. But if you put insoluble impurities, surface tension decreases. Insoluble डालने पे surface tension कम होने लगता है. On putting soluble impurities, surface tension बढ़ता है. ठीक है, हाँ. ओम पांडे पूछ रहा है कि सर स्टोन क्या है. स्टोन ऑब्वियसली इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है. स्टोन पानी में डिसॉल्व थोड़ी हो जाता है. So, ओम पांडे, स्टोन इज अ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी. ओके, आई होप सबको पता है स्टोन इज अ इनसोल्यूबल. ठीक है, ओके. सी, सो बाय पुटिंग इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस. ठीक है, by putting soluble impurities, surface tension increases. ऐसा क्यों होता है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ in short. ठीक है, so just remember this. Now I'm explaining in short why this happens. देखो, if I take any soluble impurity, ठीक है, अगर मैं कोई soluble impurity लूँ तो आपको पता है वो अच्छे से पानी में डिसॉल्व हो जाती है. डिसॉल्व होने का मतलब क्या होता है कि अच्छे से पानी में वो मिल जाती है ना. Why it happens? देखो होता क्या है, जब आप प्योर वाटर लेते हो, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ. व्हेन यू टेक प्योर वाटर लिया तो एवरीवेयर यू विल गेट H2O मॉलिक्यूल. डेफिनेटली H2O मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर लाइक दिस. ठीक है, ये जो फोर्सेस है व्हिच आर एक्टिंग ऑन दिस फोर्सेस व्हिच आर देयर, these forces acting on the per unit length is defined as surface tension. The forces which are acting on the unit length, that will be surface tension. लेकिन अगर आपने अभी soluble impurity डाल दिया, let's say if I put sugar is soluble. So होता क्या है, when you put up a sugar ना, तो होता क्या है, between two H2O molecules sugar can come. H2O molecules के बीच में sugar आ जाएगी. Now क्योंकि sugar soluble है, sugar is very much soluble. That means H2O has a very great affinity for sugar. अगर H2O has a affinity for sugar, then only it will be soluble. So होता क्या है, sugar और H2O में बहुत ज़्यादा affinity होगी. H2O will hold the sugar. H2O sugar को पकड़ के रखेगा. So अभी जो attraction होगा, the attraction force between H2O and sugar, this force is very much greater than this force. यहाँ पे आप बोल सकते हो दो molecules के बीच का force बढ़ गया. अगर ये force बढ़ गया है, तो force per unit length भी बढ़ गया. That's why surface tension increases. ठीक है, देखो ये force H2O के बीच का है, but यहाँ पे अभी force क्या होगा between H2O and the sugar. Definitely H2O has a very much affinity for sugar. That's why sugar is soluble. तभी वो sugar आराम से पानी में घुल जाती है, पानी उसको readily accept कर लेता है. This attraction between H2O and sugar is very much stronger than this attraction. Hence surface tension do increases. Okay, that's why surface tension increases.
ओके, सो याद रखो इस पॉइंट को, ठीक है। सो इसके साथ सरफेस टेंशन आज फिनिश हो गया। दिस मच इज देयर इन द सरफेस टेंशन। इट्स कंसिडर्ड एज स्लाइटली डिफिकल्ट टॉपिक बट वी फिनिश्ड इट, ठीक है। सरफेस टेंशन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस टेंशन डेफिनेशन, देन सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन डेफिनेशन, देन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी के बाद आया था एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बाद है एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर के बाद है कैपिलरिटी, कैपिलरिटी के बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। दीज आर द टॉपिक्स, ठीक है। आई सजेस्ट इनको पढ़ो आप घर पे अच्छे से। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन ओपन माइक एंड आस्क राइट नाउ। कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। अब लिसन, एक लास्ट चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। एंड अगर कोई स्टूडेंट ने लेफ्ट किया है तो उनको भी बता देना, ठीक है। मैं आपको अभी 2 से 3 क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं, यू ट्राई देम। टुमारो रैंडमली आई विल सिलेक्ट फ्यू स्टूडेंट्स, उनको अपनी कैमरा ऑन करके वो मुझे दिखाना पड़ेगा होमवर्क, ठीक है। बहुत छोटा सा होमवर्क है, हार्डली इट विल टेक लेस देन हाफ एन आवर इफ यू डू इट, ठीक है। ठीक है, होमवर्क आप प्लीज ले लो। फर्स्ट इज, ठीक है, इन सबके आंसर्स आपको लिखने हैं। डिफाइन सरफेस टेंशन एंड स्टेट इट्स फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड है डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट। थर्ड है derive formula for capillary rise using Neat diagram, ठीक है। देखो, the purpose of giving this is that आप ये करोगे ना तो आपका थोड़ा surface tension रिवाइज हो जाएगा, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट रिवाइज भी नहीं करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कल लिख के आने। रैंडमली आई विल सिलेक्ट फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। जो स्टूडेंट लेफ्ट आउट किया उनको भी बता देना। आई विल चेक दिस होमवर्क। कल मैं कुछ स्टूडेंट को ओपन कैमरा ओपन करके ये होमवर्क दिखाना पड़ेगा। नोट डाउन दिस और इसका आंसर नोटबुक में लिखो प्लीज, ठीक है। ओके, सो टुडे वी फिनिश सरफेस टेंशन। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑन द सरफेस टेंशन। न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये चैप्टर अभी फिनिश नहीं हुआ है, ओके। हाँ कमलेश सर। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो। डाउट है क्या स्टूडेंट? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, मेरे को वो इम्प्योरिटी वाला पेज दिखाओ ना। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, वापस बोलो। आवाज नहीं आ रही है पांडे। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी सर, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी का पेज दिखाओ। कौन सा? इम्प्योरिटी, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ना? हाँ ये लो। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है दैट विद सोल्यूबल इम्प्योरिटीज। क्या इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी चाहिए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चाहिए या होमवर्क चाहिए, क्या देखना है? टेम्परेचर टेम्परेचर। आपने इम्प्योरिटी बोला, टेम्परेचर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर, कमलेश सर। हाँ सर जी, ठीक है, चलेगा। होमवर्क करके आना प्लीज। हाँ स्टूडेंट सब लोग होमवर्क करके आना, जैसे सर बोले चेक करेंगे उस समय बोलना आप। ठीक है, थैंक यू सर।